اگر جنگیں بھی ہو رہی ہوں اور فوجی بھی آپس میں لڑ رہے ہوں تو وہاں بھی مورچے ہوتے ہیں، وہاں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچائیں، کور لیں. یہ نہیں کہا جاتا کہ گولیاں چلنی شروع ہو جائیں تو تم آگے. سو یس، they had all the right to protect themselves. This government had no right to shoot at peaceful protesters. زیادہ ان کو ایکسس، آپ کے اور میری ایکسس پہ تو ان کو پھر تکلیف ہو جاتی ہے نا، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں. مگر یہ انٹرنیشنل میڈیا کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کو رپورٹ کر چکے ہیں. بی بی سی کی ایک رپورٹ ہے، آپ اس کو دیکھیں. گارڈین کی ایک رپورٹ ہے، اس کو دیکھیں. مذاق خیز بات یہ ہے کہ یہ حکومت کا بیان، اس رجیم کا بیان یہ ہے کہ ایک گولی نہیں چلی ہے. یہ بھی شہید انیس ستی کوٹلی ستیاں، انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا. محمد الیاس اسلام آباد سے، یہ بھی شہید ہوئے. سردار شفیق خان، ان کے حوالے سے میں بعد میں بھی آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا اس لسٹ کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا نعبد و ایاک نستعین. تھینک یو ویری مچ. معذرت، آپ لوگوں کو کچھ انتظار کرنا پڑا. آج کی پریس کانفرنس بہت اہم ہے اور بڑی تکلیف ہو رہی ہے یہ ساری گفتگو آپ سے کرتے ہوئے. رنج، غم، غصہ، سارے سینٹیمنٹس موجود ہیں. پاکستان کی احتجاج کی تاریخ کے اندر جو المناک واقعہ اسلام آباد میں ہوا ہے، جسے ہم اسلام آباد میسیکر کا نام دے رہے ہیں، پاکستان کی احتجاجوں کی تاریخ میں اس قسم کا رویہ کسی حکومت یا رجیم کی طرف سے پرامن احتجاجیوں کے حوالے سے نہیں ملتا ہے. آج بہت سی چیزیں ہیں جو آپ سے ڈسکس کرنی ہے، بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. بہت سے اس رجیم کے، اس حکومت کے پروپیگنڈز ہیں جن کا جواب آج ہم دیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری قوم، سارا پاکستان کا ایک ایک بچہ یہ دکھ اور یہ تکلیف محسوس کر رہا ہے جو کچھ اسلام آباد میں ہوا ہے. جس طریقے سے ایک فسطائی رجیم نے، ایک جابر، ایک ظالم حکومت نے پرامن احتجاجیوں پہ انڈسکریمنیٹ فائر کیا، لائیو ایمونیشن استعمال کیا، لوگوں کے بچوں کی جانیں لی. یہ سب کچھ آپ نے دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا. انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا، نیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا، اور نیشنل میڈیا میں تو بہت سے دوستوں کو اس کی قیمت بھی چکانی پڑی ہے، جنہوں نے اس کی تفصیل میں جانے کی کوشش کی. حکومت جن حقائق کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، یہ رجیم جن شہادتوں پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کو جب صحافی کمیونٹی کے دوستوں نے انکور کرنے کی کوشش کی، دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کی، تو آج ان کو بھی پابند سلاسل کیا گیا، ان کو بھی اٹھا لیا گیا. اس قسم کا رویہ، اس قسم کی فسطائیت آج سے پہلے ہم نے نہیں دیکھی ہے. میں سب سے پہلے تو آپ سے ان لوگوں کے نام شیئر کروں گا جن کی شہادتیں فی الوقت کنفرم ہو چکی ہیں. گو کہ جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ نمبر تو اس سے بہت زیادہ ہے. بہت سے لوگ ہیں جو مسنگ ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ان کا فیٹ کیا ہے. کیا وہ شہید ہو گئے ہیں یا انہیں اٹھا لیا گیا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو گرفتار ہیں، ان کا ایک فگر پولیس ہمیں دے رہی ہے اور ایک فگر ہے جو ہمارے پاس ایک فگر ہے. بہت سے لوگ ہیں جو زخمی ہیں اور دین ایک کیٹیگری ہے جو شدید زخمی ہے، کیونکہ جس دن پہلے دن یہ واقعہ ہوا اور اس کے بعد جو ہمارے پاس فگرز آئے، اس میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے شہادتوں میں. سو میں، اگر آپ اجازت دیں گے تو میں ان ناموں سے شروع کرتا ہوں. مبین ملک، ان کا تعلق ایبٹ آباد سے، انہوں نے جامع شہادت نوش کیا. عبد القادر اگین ایبٹ آباد سے شہید ہوئے. طارق خان شانگلہ سے شہید ہوئے. ملک صدر علی مردان سے، انہوں نے بھی جامع شہادت نوش کیا. محمد علی چارسدہ سے، یہ بھی شہید. انیس ستی کوٹلی ستیاں، انہوں نے بھی جامع شہادت نوش کیا. محمد الیاس اسلام آباد سے، یہ بھی شہید ہوئے. سردار شفیق خان
ان کے حوالے سے میں بعد میں بھی آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا اس لسٹ کے بعد. ڈیرہ غازی خان شہید عبد الرشید قلعہ سیف اللہ شہید احمد ولی پشین شہید عمران عباسی ان کا ویسے تو اسلام آباد سے تعلق مقیم اسلام آباد میں تھے بتعلق ان کا خانپور ضلع ہری پور سے شہید. اور ایک اور ہمارا دوست شہید جن کا نام تاج ولی اور ان کا جنازہ آج رات جو ہے وہ 8 بجے ہے. آج رات 8 بجے. ان کا تعلق چارسدہ سے. ان کا تعلق چارسدہ سے. جو لوگ شدید زخمی ہوئے اور زخموں کی تاب نہ لا سک رہے وہ ڈیٹا ہمارے پاس آہستہ. یہ ہم نے 12 نام آپ سے اس لیے شیئر کیے ہیں کہ ان کے جنازے ان کی ویڈیوز جو ان کو گولیاں لگی وہاں پہ موقع پہ ڈی چوک کے ارد گرد وہ ساری ویڈیوز وہ ثبوت ان کے موجود ہیں. فی الوقت یہ کوائف ہیں مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ مسنگ ہیں یا جو لوگ شدید زخمی ہیں یہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے یہ چیزیں کنفرم ہوں گی ہمیں یہ خدشہ ہے کہ یہ تعداد بہت زیادہ ہے. مگر ہم آپ سے صرف وہ کوائف شیئر کر رہے ہیں جس کو ہم کل آپ کے ساتھ ان کے تمام ان کے وہ شیئر کر سکتے ہیں. میں چاہوں گا کہ اگر آپ اس کو چلا دیں. صرف چند چیزیں ہم نے آپ کے لیے کمپائل کی ہیں. یہ آپ کا ڈیٹا ہے یا یہ پولیس نے دیا ہوا ہے؟ نہیں جی، یہ ہمارا اپنا ویریفائڈ ڈیٹا ہے. ہمارا اپنا ڈیٹا کلیکشن سینٹر ہے. جب تک ہم اس کو کراس ویریفائی نہیں کرتے ہم کسی سے محمد علی چارسدہ احمد ولی پشین بلوچستان یہ دیکھیں کہ ان کے جنازے جب ان کے شہروں میں پہنچے تو کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے پرچم جو ہے وہ ان کے کافنز اور ان کی گاڑیوں پہ آگے آ دیجیے. سردار علی مردان تھینک یو فار دا کوشچن. احمد ولی پشین بلوچستان عمران عباسی ہری پور. یہ جن کے بارے میں نے کہا کہ ہی واز ریزیڈنٹ ان اسلام آباد بٹ بیسیکلی ہی از فرام خانپور ہری پور. عبد القادر ایبٹ آباد جی پلیز. کوہاٹ الیاس اورگزئی یہ میں آپ کو تھوڑا سا بھائی یہ جو ویڈیو آخر میں دکھائی آپ کو تھوڑی سی ایکسپلین کر دوں. یہ سردار شفیق خان لنڈ ڈیرہ غازی خان یہ ہمارے وہ شہید ہیں کہ جن کی ڈیڈ باڈی پمز میں پڑی رہی. ان کے لواحقین پاکستان تحریک انصاف آپ کی برادری میں سے صحافی بھائی وہ وہاں پہ ہاسپٹل میں جا کے کوائف ڈیمانڈ کرتے رہے. گھر والے میت مانگتے رہے مگر انہیں انکار کیا جاتا رہا. 2-3 دن تک باقاعدہ طور پہ ریفیوز کر دیا کہ یہ ڈیڈ باڈی یہاں ہے ہی نہیں. ان کو نہیں دیا گیا. ان کی آہو بقا آپ میں سے بہت سے چینلز پہ یوٹیوبرز ہمارے دوست جو صحافی ہیں وہ اٹھاتے رہے کہ یہ ڈیڈ باڈی یہ میت ان کے حوالے کی جائے مگر یہ ایسی ظالم اور جابر رجیم ہے جنہوں نے انکار کیا. اور اب پنڈی کے ہاسپٹل سے یہ کہہ کے یہ ڈیڈ باڈی دی گئی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ان کی جو موت ہے وہ ایک ایکسیڈنٹ میں ہوئی. ہم نے اسی لیے آن سائٹ آپ کو یہ ویڈیو شیئر کی ہے کہ جس وقت
इनको बुलेट लगी और उस किस तरीके से वो नौजवान इनको उठा रहे हैं मौके पे, तो आप ये देख लें कि ये हुकूमत किस तरीके से वो शहादतें और मैतों को छुपाने की ये रिजीम कोशिश कर रहा है। इस तरीके से नहीं हो सकता, जनाजे नहीं छुपते हैं, शहादतें नहीं छुपती हैं, और ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता, ये तो सिर्फ एक वीडियो है, हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ये सारा डाटा आपके साथ हम शेयर करेंगे। और अपने ज़हन में रखिएगा कि बहुत से इंटरनेशनल मीडिया के आउटलेट्स हैं जो ऑलरेडी ये चीजें आपके हमारे से पहले रिपोर्ट कर चुके हैं। ज्यादा उनको एक्सेस, आपके और मेरी एक्सेस पे तो इनको फिर तकलीफ हो जाती है ना, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, मगर ये इंटरनेशनल मीडिया के बहुत से लोग जो हैं वो इसको रिपोर्ट कर चुके हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट है, आप उसको देखें, गार्डियन की एक रिपोर्ट है, उसको देखें। मज़ाक़ खेज बात यह है कि ये हुकूमत का बयान, इस रिजीम का बयान ये है कि एक गोली नहीं चली है। वो बार बार हमसे नाम पूछते हैं, वो बार बार हमसे सबूत पूछते हैं। ये नाम भी मौजूद है, सबूत भी मौजूद है, और जितनी गोलियां आपने चलाई वो मेरे ख्याल में वो छुप नहीं सकती हैं, क्योंकि उनकी जो गूंज है उन गोलियों की, वो कई सालों तक इस फस्ताई दौर की याद इन लोगों को, इस कौम को दिलाती रहेगी। जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और मैं ये समझता हूं कि वो भी इसी हवाले से है। आपके एक और आपकी बिरादरी में से सहाफी शाकिर अब्बासी साहब, वो जो पॉली क्लिनिक अस्पताल में लाए गए गोलियां लगने वाले जख्मी और शहीदों की उन्होंने लिस्ट शेयर की। हुकूमत ने पॉली क्लिनिक के ऊपर प्रेशर डाल के बाद में उस लिस्ट को, उन्हें कहा जी ये वो लिस्ट ही नहीं है। हालांकि वो लिस्ट आपको पता है जिस तरीके से आप लोग बड़ी मुश्किल से वो हसूल करते हैं वो इंफॉर्मेशन, तो उन्होंने बाद में, इस रिजीम ने उन पर प्रेशर डाला और उस लिस्ट को डिसोन करने की कोशिश की गई। उसी लिस्ट के अंदर से फिर 2 बंदों के जनाजे जो है वो हमने आपको यहाँ पे दिखाए हैं, और ये साबित करता है कि किस तरीके से इनकी अपनी इशू की हुई लिस्ट है, जो शायद हो सकता है उस वक्त डॉक्टर्स ने अपना फर्ज समझते हुए जल्दी दे दी हो, और बाद में रिजीम को समझ आई हो कि ये काम इस तरह नहीं था। शफीक के हवाले से मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कितना बड़ा जुल्म है। इंसाफ डॉक्टर फोरम्स के डॉक्टर और स्टाफ का अगवा, जो कि यही इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे थे, वो सारी चीजें आप लोगों ने रिपोर्ट की हैं। ये सब सिर्फ इसलिए है कि इसको छुपाया जा सके, मगर ये चीजें छुप नहीं सकती हैं। यहाँ पे एक और चीज बड़ी अहम है, मैं 2-4 नुक्ते करके उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा उमर अयूब साहब से और मेरे सजाद साहब से कि ये बात करेंगे। ये तो बिल्कुल ऐसे डी चौक पे तो ऐसे था कि जैसे कोई करबला हो। ये तो जदीदी कुव्वतें हैं जिन्होंने पाकिस्तान में फसाइयत फैलाई हुई है पिछले 2 सालों से। ये जो वक्त के यजीद है, जिन्होंने वहां पे डी चौक में करबला सा समा पैदा किया और अपने ही बच्चों पे, मासूम बच्चों पे गोलियां चलाई। मतलब दुनिया का कौन सा कानून ये कहता है कि पुरअमन एहतजाजी नौजवानों, बच्चों, औरतों के ऊपर गोलियां बरसाई जाएं? कौन सा कानून है जो जान लेने की इजाजत देता है? वो कौन सा कानून है जो कहता है कि तुम एक चौक में बैठोगे और हम तुम्हें गोली मार के तुम्हारी जान ले लेंगे एहतजाज की वजह से? वो कौन सा ऐसा गुनाह किया था इन बच्चों ने? वो कौन सा ऐसा जुल्म किया था इन नौजवानों ने? वो कौन सा ऐसा काम किया था जिस पे ये हुकूमत, ये रिजीम, ये रियासत ये समझती है कि इनको जीने का हक नहीं है और इनसे जीने का हक छीन लेना चाहिए? किस लिए? मुझे कोई ऐसा कानून दुनिया में दिखाएं जो इजाजत देता हो इस हुकूमत को कि आप पुरअमन प्रोटेस्टर्स के साथ ये रवैया अख्तियार कर सकते हैं। कभी भी नहीं। ये लेगेसी है मॉडल टाउन वालों की, जो मॉडल टाउन में इन्होंने किया था। ये लेगेसी है पीपल्स पार्टी की 77 में, आप देख लें। ये पीडीएम की दोनों पॉलिटिकल पार्टी की लेगेसीज है जो आज तक यहां चल रही है। और ये रिजीम किस तरीके से रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करके अपने ही लोगों की जान ले रहा है। मैं ये समझता हूं कि मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी ये इस बात का सबूत है कि ये आपकी आंखें बंद करना चाहते हैं, आपके होंठ सीना चाहते हैं। ये समझते हैं कि ना पाकिस्तान में कोई बोल सके, ना पाकिस्तान में कोई सुन सके, ना पाकिस्तान में कोई देख सके। पाकिस्तानी और पाकिस्तान, ये they should be blind, they should be deaf, nobody should be able to speak. प्रोटेस्ट इतना बड़ा गुनाह है, एहतजाज इतना बड़ा गुनाह है। कोई अंदाजा है इन फस्ताई यजीदों को कि जिनके बच्चे चले गए हैं आज उनके घरों में क्या हालत होगी? वो क्या करने आए थे? मुझे लोग, किसी दोस्त ने कहा कि जी वो वहां से वो बंदे, जिस वक्त फायर हुआ तो बंदे भाग रहे थे। ओ भाई, ज़हन में रखिएगा, ये पुरअमन प्रोटेस्टर्स थे, एहतजाज करने आए थे।
एहतजाज का हक आईन ने दिया है, गैस के लिए तैयार थे ज़हनी तौर पे, रबर बुलेट्स के लिए तैयार थे ज़हनी तौर पे, स्टन ग्रेनेड्स भी इस्तेमाल हुए हैं, तैयार थे ज़हनी तौर पे। ये कोई मिलिटेंट्स नहीं थे, ये कोई बुत नहीं थे, ये गोलियों के लिए तैयार नहीं थे, ये गोलियों के लिए तैयार नहीं थे। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये लोग एहतजाज करने गए थे। हाँ, शेलिंग है, शदीद कर दो, रबर बुलेट्स पहले भी बरसाते रहे हो और बरस जाती, मगर गोलियां मार रहे हो तुम यार। और फिर हमसे पूछते हो और इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया को कहते हो कि एक गोली फायर नहीं हुई। आपने सुना इन वजीरों के बयान, कहते हैं जी कोई एक गोली, कहते हैं गोली फायर ही नहीं हुई। मतलब मैं तो इनकी बेहिसी के ऊपर हैरान हूं कि ये कहते हैं गोली फायर ही नहीं। सो ये लोग वो दलेर और बहादुर थे जो अपने पुरअमन आईनी एहतजाज के हक को एक्सरसाइज कर रहे थे। किसी को हक नहीं था इनके ऊपर गोलियां बरसाने का। इवन अगर जंगें भी हो रही हो और फौजी भी आपस में लड़ रहे हो तो वहां भी मोर्चे होते हैं, वहां भी कहा जाता है कि आप अपने आप को बचाएं, कवर लें। ये नहीं कहा जाता कि गोलियां चलनी शुरू हो जाए तो तुम आगे आ। सो यस, they had all the right to protect themselves, and this government had no right to shoot at peaceful protesters who was protesting and exercising their constitutional right. ये बातें करते हैं और इनको शर्म नहीं आती है। एक वजीर कहता है कि रियासत के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा। मैंने तो ये पढ़ा और सुना था कि रियासत मां की सी होती है। मैंने तो मां के सब्र का पैमाना लबरेज ऐसे होते हुए नहीं देखा है। ये रियासत का सब्र का पैमाना लबरेज हुआ कि जो रियासत मां होती है वो अपने बच्चों की जान लेना शुरू कर देती है। ये क्या किया आप लोगों ने? ये नस्लें माफ नहीं करेंगी। नफरतों के वो बीज और वो रिश्ते कायम कर लिए आपने कि ये आपको नस्लों तक हॉट करेंगे। ये माफ नहीं करेंगे ये लोग आपको अपने। और ये कहते हैं, ये एक बात मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ अगर भाई इजाजत दें तो मैं कर लूं कि जी ये रेड जोन की तरफ जा रहे थे। एक जगह ये भी आया, एक तरफ कहते हैं गोली नहीं चली, दूसरी तरफ कहते हैं कि रेड जोन की तरफ जा रहे थे। तो वहां सो लेट मी बी ऑन रिकॉर्ड कि जो पहला प्रोटेस्टर जिसको गोली मारी गई वो सी पैक रूट पे जिस वक्त साउथ केपी का काफिला जिसको कैप्टन उमर अमीन लीड कर रहे थे अपने बाकी एमएनएज एमपीएस के साथ और बाकी जिलों के साथ, वो जिस वक्त दाऊद खेल पहुंचा तो पहला प्रोटेस्टर जो है उसको गोली वहां लगी है। और ये असर से मगरिब के दौरान का वक्त था। ये मैं आपको 24 की बात बता रहा हूं। सो अगर कोई ये कहता है और ये नेशनल इंटरनेशनल मीडिया को बताने की कोशिश करता है, चाहे कोई इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है या इंटीरियर मिनिस्टर है या वजीर आजम पाकिस्तान है, बोलता नहीं है वजीर आजम पाकिस्तान, बोले ना अपने बच्चों की जान लेने के बाद जो है वो क्या शक्ल होती है, मैं वो देखना चाहता हूं। सो ये कहना कि क्योंकि ये रेड जोन की तरफ जा रहे थे दैट्स व्हाई दे वर फायर्ड अपॉन, एंड ऑन वन हैंड दे सेड देयर वाज नो फायरिंग एट ऑल। सो नो, इनका इरादा था। तो 24 को ही असर और मगरिब के दौरान हमारे पहले बंदे को यहाँ पेट से नीचे वो फायर लगा। साउथ केपी का जो काफिला था उसकी डिटेल्स भी हम आपसे उसकी शेयर कर देंगे। ही वाज टेकन टू द डिया खान हॉस्पिटल एंड ट्रीटेड। सो ये बड़ा एक इनकी बातों में तजाद सामने आ रहा है क्योंकि ये जो वाकया हो गया है इनको समझ नहीं आ रही कि ये इसको छुपा कैसे करेंगे। लोग ये समझते हैं और बहुत से लोग ये बातें करते हैं और मैं आई कंडेम दोज एलिमेंट्स। मैं ये समझता हूं कि ये तारीख की, एहतजाजी तारीख की, इट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोबिलाइजेशन इन पाकिस्तान, पीसफुली डन। इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन पाकिस्तान में खुसूसन केपी की तरफ से, खुसूसन केपी की तरफ से मैं नहीं समझता, मेरे इल्म में नहीं है कि इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन पीसफुली जो है वो इस तरीके से हुई हो। मोबिलाइजेशन हुई, रास्तों से रुकावटें हटाते गए, एक रुकावट, दूसरी रुकावट, तीसरी रुकावट, एंड देन यू वर इन डी चौक। जो इमरान खान साहब का एक जो एक हुक्म था वो वहां डी चौक पे पहुंच गए सारे। उसमें अली अमीन खान साहब खुद मौजूद थे, उसमें तमाम के केपी के लोग थे, पंजाब से भी कुछ लोग थे, बलूचिस्तान के लोग थे, सिंध से हमारे जो लोग थे वो वहां पे पहुंचे हुए थे। उन्होंने अपना वादा पूरा किया, बट अगेन मैं कहूंगा वो कोई मिलिटेंट नहीं थे,
जिस वक्त गोलियां चली, मैं समझता हूं कि जो लोग वहां से निकले, जो वर्कर वहां से निकले, ये उनका राइट था टू प्रोटेक्ट देयर लाइफ. You can't put the lives of innocent protesters at risk by telling them to just keep standing in front of the bullets. Why? ये लोगों के बच्चे, हमारे बच्चे नहीं है. तो मैं ये समझता हूं कि ये वो दलेर लोग हैं जिन्होंने तारीख रकम किया, और इनको खराज तहसीन पेश करता हूं, और खसूसी तौर पे चीफ मिनिस्टर को, जो वहां तक पहुंचा, हजारों लाखों की लोगों की मोबिलाइजेशन को इंश्योर करके, और उसके बाद जब आपके सूबे की इज्जत का सवाल आया कि अपने कायद की बीवी जो है, अगर वो वहां से अरेस्ट हो जाती या वो उनको अगवा कर लिया जाता या उनको मार लिया जाता, तो सारी आने वाली नस्लों के लिए भी वो लोग कहते कि ये पख्तूनों का चीफ मिनिस्टर गया था और वो करके आ गया. उसने अपनी जान पे खेल के ये इंश्योर किया कि पख्तून रिवायात, केपी की रिवायात के हवाले से वो किसी के आगे शर्मिंदा ना हो, किसी को ये उंगली उठाने का मौका ना मिले. असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ प्रोविंस. डी चौक तो एक वाकया ना सर. डी चौक से जब वो निकले, एंड लेट मी टेल यू, ही वाज वन ऑफ द लास्ट पीपल हु लेफ्ट डी चौक. लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दैट. वन ऑफ द लास्ट टू लीव डी चौक. जब वो निकलते हैं तो डी चौक से अगले चौक पे स्ट्रेट फायर गाड़ी के ऊपर, डी चौक पे भी, उससे अगला चौक मुनाल. जब तक वो केपी की हदूद में नहीं आए, गाड़ियों ने उनको चेज किया. हिट एंड रन था, गाड़ियों ने हिट किया. आप उनकी गाड़ियां देखिएगा, उनके डबल कैबिन जो है उनको हिट करके उड़ा दिया गया, उनका स्टाफ अरेस्ट कर लिया गया. उनकी अपनी गाड़ी जिसमें वो जा रहे थे उसको राइट लेफ्ट से जो है वो मारते रहे टू अरेस्ट हिम विद इन द लिमिट्स ऑफ इस्लामाबाद. फिर जब वो केपी में पहुंचे तो ये उमर साहब आपको खुद बताएंगे, ही वाज विद देम, कि किस तरीके से पंजाब रेंजर्स का क्या काम है केपी की हदूद में, कौन से कानून और जुरिस्डिक्शन के तहत पंजाब रेंजर्स जो है वो हरीपुर और एबटाबाद में मूव कर रहे थे. वो भी आपको अभी उसको एक्सप्लेन करेंगे. तो मैं ये समझता हूं कि मैं केपी की रिवायात को अपहेल्ड करने के हवाले से मैं चीफ मिनिस्टर को खराज तहसीन पेश करता हूं. और मैं समझता हूं कि जो दलेर लोग जो केपी से गए, जिन्होंने बेसिकली जो रूह रवां थे इस सारे मार्च के, उनको सलाम है. उन माओं को सलाम है जिनके बच्चे शहीद हुए, उनकी नस्लों को सलाम है. हमारे जो वर्कर्स हैं, गिरफ्तारियों के हवाले से आपने देखा होगा कि मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, इंटरनेशनल मीडिया ने भी, हम भी आपको वक्तन फक्तन बताते रहे. हमारे हिसाब से 5,500 आदमी पाकिस्तान में अरेस्ट किया गया बिफोर 24th of November in different operations in different provinces. 5,500 हर जिले के अंदर. ये मैं पंजाब को साथ इंक्लूड कर रहा हूं. सिंध, बलोचिस्तान, हर जिले में से बंदे उठाए गए, बड़ी तादाद में बंदे उठाए गए. और वो कोई FIRs के, वो सिर्फ वो जो सिक्योरिटी ब्रांच की लिस्टें होती है ना जी, वो पंजाब हुकूमत बैठी है, पता नहीं ये क्या दिल रखते हैं और ये क्या इंसानियत है, इन्हें कोई शर्म नहीं है. उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता. वो एक स्पेशल ब्रांच ने एक लिस्टें बनाई हुई हैं, उनमें सिर्फ PTI के बच्चों को ये ऐड करते रहते हैं, उनके वर्कर्स को ऐड करते रहते हैं. जैसे ही कोई कॉल आती है वैसे ही छापे शुरू हो जाते हैं बंदे. ये बात का फिक्र है. अब का फिक्र आप देखें तो आपने ये जो पुलिस के लोगों को बिठा के उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही हैं, वो कहता है एक के पिंडी में 700 बंदे गिरफ्तार हुए हैं, अटक वाला कहता है कि हमने 1100 गिरफ्तार किए हैं. ये इनका फिक्र है. हम ये समझते हैं कि हमारे बहुत से लोग, सैकड़ों हजारों में जो मिसिंग है, वो भी इनके पास है. ये फिगर ये ऑन रिकॉर्ड दे रहे हैं, हम इसको नहीं मानते हैं. हम समझते हैं कि ये फिगर इससे बहुत ज्यादा है. और मैं अपने तमाम वर्कर्स को आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के उससे वसासत से कहूंगा कि जो अटक में गिरफ्तार है, जो पिंडी में गिरफ्तार है, तहरीक इंसाफ के लोग, वर्कर पार्टी को भी हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं. जितने लोग पहुंच सकते हैं, ये जो हमारे बच्चे वहां पे अरेस्ट हैं, इनके लिए हमारी लीगल टीमें मोबिलाइज हो गई हैं. जो बच्चे अरेस्ट हैं, इनको कंबल, इनको कपड़े, इन बच्चों को कोई भी जो फैसिलिटेशन है वो हम भी अपनी हैसियत के मुताबिक यहाँ से पार्टी भी इंश्योर कर रही है. और जिन जिन जिलों के अंदर ये गिरफ्तार है, ये तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को डायरेक्शन जो है वो जारी हो रही है कि आप फौरी पहुंच के उनको हेल्प करें. ये वो लोग हैं जिन्होंने आपकी और मेरी आजादी के लिए, खान की हकीकी आजादी के ख्वाब के लिए, इन्होंने ये सारा
ये सारी कुर्बानी दी है। गाड़ियां, आप लोगों के सूबे में से सबसे बड़ी मोबिलाइजेशन थी, सैकड़ों हजारों गाड़ियां वहां खड़ी हैं। आज एक वीडियो आई है जो सरकारी लोग यूनिफॉर्म में, पुलिस और बाकी कानून नाफिज करने वाले इदारे खड़ी हुई गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे हैं। मतलब वही वो गुल्लू भट्ट वाली जो मेंटेलिटी है, याद है आपको वीडियोस, आपको याद है वो वीडियो आज शेयर की है किसी ने, मैं अभी थोड़ी देर पहले देखी है, ऑब्वियसली आप में से किसी भाई ने हिम्मत की होगी। लोग यूनिफॉर्म में खड़े होकर गाड़ियां तोड़ रहे हैं। भाई, हु हैज गिवन यू दिस राइट टू डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टी ऑफ पाकिस्तानी पीपल? कानून है ना 3 साल के सजा का, अगर कोई डी चौक में बगैर इजाजत आए तो दो उनके ऊपर 3 साल वाले कानून के तहत एफआईआर और पेश करो उनको अदालतों के अंदर, और फिर जज फैसला करेंगे उनका। आपने उनको गोलियां मारी, फिर जब वो बेचारे वहां से निकले अपनी जान बचाने के लिए, तो उसके बाद आप उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो तबाह करते हैं, उन गाड़ियों को। ये क्या है? व्हाट काइंड ऑफ अ गुंडागर्दी इज दिस? ये तो कोई हुकूमत या रिजीम नहीं, ये तो मुझे बुली लगते हैं। मतलब आप अपने ही लोगों की गाड़ियां, मतलब अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई प्रोटेक्शन, स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सिक्योरिटी। मुझे बंदूक उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह जिम्मेदारी मेरी रियासत की है और मेरी सरकार की है। मगर यह कैसी सरकार और रियासत है जो अपने ही लोगों की प्रॉपर्टी तबाह करती है? मैं आपको बताऊं कि ये 24 नवंबर से पहले बिला इम्तियाज, पहले तो जो कुछ ज्यादा बोलते थे सिर्फ उनके घर तोड़े जाते थे ना। पंजाब में हर एमएनए एमपीए के घर में घुस के उसको रैंसैक किया गया, तबाह किया गया, हर चीज तोड़ फोड़ दी गई। और मेजॉरिटी लोगों को हमने कहा कि डोंट शेयर, इससे वर्कर में कोई खौफ पैदा ना हो, आप हौसला करें, ये तो रूटीन चलती रहेगी। वो चीजें अब सामने आ रही हैं सर, कि इन्होंने लोगों के साथ क्या किया है। हमारे उन लोगों को कंबल, गर्म कपड़े, इन सब चीजों की जरूरत है, और मैं पार्टी के दोस्तों को कहूंगा कि वो उस पर हेल्प करें। एक नया आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान असेंबली के अंदर एक करारदाद आई है। बलूचिस्तान असेंबली में करारदाद आई, वो क्या करारदाद है कि जी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर दें। मैं मतलब ये इन अहमकों की हमाकतों में रोज इजाफा होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं। आप बैन कर सकते हैं तो बैन कर दें। हम भी केपी असेंबली के अंदर करारदाद ले आते हैं कि आप पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को भी बैन कर दें। जो तुम्हारे बलोचिस्तान में करारदाद लाने से पीटीआई बैन हुई ना, तो इंशाल्लाह फिर हमारे केपी के अंदर करारदाद लाने से फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी बैन होना पड़ेगा। और हम लेके आएंगे अब ये करारदाद, आप ले आए हैं, अब हम भी लेके आएंगे केपी असेंबली में ये करारदाद कि ठीक है जी, ये जो फस्तायत के आर्किटेक्ट्स है ना, इनको भी हमें इसी तरीके से डील करना चाहिए जैसे ये लोगों को डील कर रहे हैं। बहुत सी चीजें हैं जो सामने आ रही हैं। हम आपको सिर्फ कंफर्म चीजें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि कल हमें आपके सामने जब हम जवाबदेह होंगे तो कोई चीज ऑथेंटिक हो सके। अब बार बार कहते हैं, आपने खबरें सुनी होगी कि गवर्नर राज जो है वो हम लगा देंगे, या ये खबरें निकल रही हैं। ये भी हमाकतों में से एक और हमाकत होगी, ये आप करके देख लें। आप अपने एक सूबे के खिलाफ ये जहर आप कब तक उगलेंगे और कब तक आप उसको वो करेंगे, इसकी कोई हद नहीं है। मगर केपी के अवाम ने जिस तरीके से पहले इस फसाइयत का मुकाबला किया है, डी चौक में पहुंच के साबित किया है कि ये किसी से डरते नहीं है, किसी से घबराते नहीं है, और हमेशा हक और सच के साथ खड़े होते हैं। ये आपकी हर साजिश को नाकाम करेंगे, आपके हर ओछे, घटिया, गंदे हथकंडों को जो है वो ये नाकाम बनाएंगे। और ये आपकी सिर्फ सोच है कि आप ये समझते हैं कि ये मामला जो ऐसे खत्म हो जाएगा। इस पे हम लीगल कार्रवाई करेंगे, हम इसको ऐसे नहीं जाने देंगे। तमाम वो घर जो पंजाब में तोड़े गए हैं, सबको अर्ज किया जा रहा है पार्टी की तरफ से कि उसके खिलाफ अदालतों में जाएंगे। जो पहले 1 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं, नहीं अब नहीं होगा, अदालतों में जाएंगे। और जो डीपीओ, चाहे कोई पंजाब का आईजी है, चाहे कोई इस्लामाबाद का आईजी है, ये सारी एफआईआर जो है, ये हम इस पर डिमांड करते हैं कि ये फौरी से पहले दी जाए। हम जिम्मेदार समझते हैं शहबाज शरीफ को, हम जिम्मेदार समझते हैं इंटीरियर मिनिस्टर को, और बिल्कुल ये जो रोज आके टीवी पे बैठ के हमें धमकियां देते हैं सारी पाकिस्तानी अवाम को और इमरान खान के चाहने वालों को, वो जो एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उसको भी जिम्मेदार समझते हैं। ये तमाम लोग जो है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे इंटीरियर मिनिस्टर है, चाहे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है,
یہ ساری جو یہ رجیم ہے، یہ ساری جو حکومت ہے، یہ ہمارے ان بچوں کے، ان شہیدوں کے قاتل ہیں۔ یہ جو ہے یہ آرڈر دینے والے ہیں، یہ پہلے دھمکیاں دیتے ہیں، پہلے دھمکیاں دی۔ آپ نے دیکھا کہ انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ 5 منٹ تک فائرنگ کریں گے تو ان میں سے کوئی کھڑا نہیں رہے گا، سارے بھاگ جائیں گے۔ اور اس کے بعد 726 نمبر والا واقعہ ہو گیا، پھر آ کے گفتگو کی انٹیریئر منسٹر نے، اور پھر یہ والا واقعہ ہو گیا۔ تو یہ زمین پہ خدا بننے کی جو آپ کی خواہش ہے، یہ قوم پوری نہیں ہونے دے گی۔ یہ جو اندھیرا دور ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ آپ لوگوں کو یہ جو کام آپ نے کیا ہے، آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا، عدالتوں میں جواب دینا پڑے گا۔ آپ کو آئین کے مطابق آپ کو اس ملک کی قانون کے سامنے جواب دہی کرنی پڑے گی۔ یہ جو قتل ہیں، یہ جو شہادتیں ہیں، اس میں آپ بالکل بچ کے نہیں جا سکیں گے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں، دیکھیں جب کوئی طاقتور ہوتا ہے نا، اور خصوصاً اس قسم کی طاقت ہو کہ جب آپ کے پاس یہ اختیار ہو کہ آپ اجازت دیں گولی کی اور گولیاں چل جائیں اور لوگوں کے بچے مر جائیں، تو پھر پتہ نہیں ایک عجیب و غریب قسم کی شاید فرونیت جو ہے وہ لوگوں میں آ جاتی ہے۔ اور وہ فرونیت جو ہے وہ پھر شاید اس وقت تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے طاقتور کوئی نہیں ہے، مگر اللہ کی ذات جو ہے وہ ہے۔ ہم اس پہ چاہے جوڈیشل انکوائریز ہیں، چاہے کورٹ کی انکوائریز ہیں، ایف آئی آرز ہیں، وی اسٹرانگلی ڈیمانڈ کہ یہ حکومت یہ ایسی حرکت نہ کرے۔ ہم عدلیہ سے بھی کہیں گے کہ سارے آپ کے بچے تھے، یہ پاکستانی تھے اور صرف پرامن احتجاج کر رہے تھے، ان کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ جب آپ کے چیف منسٹر پہ اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی ہے تو ہم چاہیں گے کہ ان چوکوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے، جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے گاڑیاں لگیں اور ایسے گولیاں لگیں، سیف سٹی ہے نا، اربوں روپے لگے ہیں سیف سٹی کے اندر۔ تو ٹھیک ہے، آپ عمران خان صاحب کی کورٹ والی فوٹیج تو نہیں مل رہی ہے، 9 مئی والی فوٹیج بھی نہیں ملتی ہے، اس کے بھی ٹکڑے آپ نکال کے وہ کر دیتے ہیں۔ یہ تو چوکوں میں سے وہ گیا نا، کہیں اڑ کے تو نہیں گیا۔ تو وہ جو آپ نے اس کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے، غائب ہو گئی ہے، تو بس دین آئی ریسٹ مائی کیس۔ پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ ہمارا پہلا نیریٹو ہے، جس طرح یہ ہمیشہ کرتے ہیں چھپانے کی کوشش، یہ اسی طرح کر رہے ہیں۔ تو وہ اسٹرانگلی ڈیمانڈ کہ ان کی ایف آئی آر جو ہیں وہ پرائم منسٹر پہ، انٹیریئر منسٹر پہ، یہ جو ہمارے اطلاع کے منسٹر ہیں اس پہ دی جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر جو ہے وہ لوگوں میں بے چینی پھیلے گی، اور یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اور ہم عدلیہ کو دوبارہ، میں نے پہلے بھی کہا اسی پریس کانفرنس میں، میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سامنے آئیں اور یہ جو قاتل ہیں، جنہوں نے قتال کیا ہے، ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچائیں۔ اس طریقے سے یہ کام نہیں چلے گا، اس طریقے سے یہ ملک نہیں چلے گا۔ میں عمر ایوب